Okay. So I once again I welcome you all to this computer class. So bete, I told you this is your book. Book name of the book is IT Framework. Publisher is Avartan Publications for class. The number is 4, but we will study this in class 5th. So agar if you have your book in, then keep your book in front of you and open chapter number 1. That is your computer hardware and software. So let me share my screen once. Rupali ma'am, please allow me to share my screen as well. Okay, ma'am. Okay. So Done, ma'am. बेटे meanwhile मैं आपको बता दूं for PT1 we will be studying chapter 1 and chapter 2 of your book. Chapter 1 is computer hardware and software and chapter 2 is computer memory. तो हम इसी को रीड करेंगे. हमारे पास जितने भी हमारे पास पीरियड होंगे उसमें हम को स्टडी करेंगे प्लस हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है. सो आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन एज वेल. जब भी मैं आपको बोलूँगी कुछ परफॉर्म करने के लिए, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट. Rupali ma'am, is my screen visible? Ma'am, it's not visible to me. Yes, ma'am. Visible now. Yes, ma'am. Visible now. Okay. Okay, bete. So I hope it is visible to all of you. So we will be starting chapter number 1, computer hardware and software. So first of all, we will talk what is hardware. तो आप सबको पता है कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है. तो जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर. व्हाट आर दे कॉल्ड? हार्डवेयर. राइट. सो कैन यू टाइप सम हार्डवेयर नेम इन द चैट बॉक्स? आप चैट बॉक्स में कुछ हार्डवेयर के नेम टाइप कर सकते हो. अगर आपको पता है, इफ यू नो एनी नेम ऑफ द हार्डवेयर, कैन यू टाइप? Okay, Hargun Veerpal is writing monitor, speakers. Very good. So these are the different types of hardware. Okay, bete, thank you so much. So these are the different types of hardware we have. So you can see we have monitor, keyboard, different joysticks, computer के CPU के अंदर कुछ parts होते हैं हमारे पास, वो भी हैं जिनको हम देख सकते हैं और touch कर सकते हैं. All those parts are included in computer hardware. Yes, CPU, keyboard, mouse, all these input devices, processing devices, and output devices. Very good, very good, very good. So let us move further. ओके, सो हार्डवेयर को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन कौन से पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज इनपुट डिवाइसेस. जैसे अभी आप सभी लोगों ने चैट बॉक्स में मुझे बताया, तो जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस है, कीबोर्ड है, जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को भेजते हैं, या फिर जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस है जिन पे हमें आउटपुट नजर आती है, like whatever we do, whatever the work we do, that is visible on the screen, that is on the monitor.
ठीक है, we can touch the monitor, so monitor is a hardware. Similarly, CPU is hardware. So three hardware can be classified into three parts, that is inputs, output and processing devices. So first of all we will talk about input devices. तो जो भी devices हैं जिनकी help से हम कंप्यूटर के अंदर we enter data into the computer, they are called input devices. उनको हम क्या बोलते हैं? Input devices. So first input device is a keyboard. तो keyboard क्या है? सबसे essential. Keyboard and mouse are the most essential devices, input devices of the computer. Somebody has written, Vanshika Bansal ने लिखा है Tux Paint. बेटे Tux Paint is not input device. हम input device की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि काम कर, वो कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं. अगर हम बेटे ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो चैट बॉक्स में, मैं लास्ट में आंसर दूंगी इनका बिफोर 5 मिनट्स. ठीक है, तो अभी मीनवाइल आई एम टेलिंग यू अबाउट इनपुट डिवाइसेस. तो दिस इज कीबोर्ड. अच्छा, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सबको बताना है हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड. सो क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स जिसको पता है हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Somebody is writing 104 and Brahmjot is writing 101. बाकियों को नहीं पता? आप सभी को how many keys are there in the keyboard? Can you type and quickly type it in the chat box? 104, 104, 108. Okay, Vanshika, Vedansh is bit confused कि 108 keys हैं या 104 keys हैं, है ना? It depends from some keyboard to keyboard as well. So basically in most of the keyboards we have 104 keys. Very good. The answer is 104 keys. एक और क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास. हाउ मेनी टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर देयर? जनरली अगर हम जनरली बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं? डू यू नो? अच्छा, 2 टाइप ऑफ कीबोर्ड होते हैं. आप बता सकते हो कौन कौन से? बुक में लिखा हुआ है वैसे तो, है ना? चलो लेट मी एक्सप्लेन. बुक में आपके दिया हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ कीबोर्ड्स. तो आपको पता है कीबोर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर. इट हैज 104 कीज और डिफरेंट कीज की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है. वी हैव अल्फाबेटिकल की, वी हैव न्यूमेरिक कीज. तो डिफरेंट कीज को यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे पास पहला जो कीबोर्ड है दैट इज QWERTY कीबोर्ड. व्हाई इट इज कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड? इसमें भी 104 कीज होती हैं. तो अगर आप देख सकते हो जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल कीज है उनमें से जो सबसे पहले 6 कीज हैं दे आर अरेंज इन, उनके ऊपर लिखा है QWERTY. वो ABC फॉर्म में नहीं है जैसे हम ABC स्कूल में पढ़ते हैं, बचपन में अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं, वैसे नहीं है. इट इज रिटन QWERTY फॉर स्पेसिफिक रीजन. ठीक है, तो जिस भी कीबोर्ड पे हमारा इस फॉर्म में ABC लिखी होगी, QWERTY QW से शुरू हो रही है, वो सभी कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं? QWERTY कीबोर्ड्स. सो numbers, alphabets are not arranged in alphabetical order but rather in this order which is shown on your screen. Second is मल्टीमीडिया कीबोर्ड. तो आपकी बुक में भी ये फोटो है एंड यू ऑल्सो यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन एज वेल. तो जो भी कीबोर्ड हैं जिनके ऊपर आप देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कीबोर्ड, ऊपर तुम्हारे पास कीज दी हुई हैं, मीडिया कीज हुई हैं. मीडिया कीज कंट्रोल, मीडिया मतलब सपोज आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है, आपको प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है. ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको पॉज करना है, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके लिए आपको अलग से कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड पे ही कीज प्रोवाइड की गई हैं फॉर मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटी. सो दैट कीबोर्ड इज कॉल्ड multimedia keyboard. I hope this is clear. So next we will talk about here is mouse. The mouse is a pointing device which is used to select and move items on the screen. तो आप अब मेरा कर्सर देख सकते हो, मैं मूव कर रही हूँ इसको. तो आप जिस भी डायरेक्शन में माउस को मूव करोगे, मैं अभी माउस लेफ्ट को मूव कर रही हूँ तो कर्सर
लेफ्ट को मूव कर रहा है, अगर हम राइट को मूव करेंगे तो कर्सर राइट को मूव करेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड, दिस movement of this cursor is being controlled with the help of the mouse. So हमने ये पढ़ा हुआ है, we have done this before as well, कि अगर हम एक माउस की बात करें तो उसमें कितने उसके बटन्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली 2 बटन्स होते हैं, दिस वन इज राइट बटन, दिस वन इज लेफ्ट बटन, और बीच में ये जो है दिस इज अ स्क्रॉल व्हील, ठीक है, एंड दिस इज अ माउस वायर, ये हमारी माउस की वायर है। वैसे आजकल देयर आर अवेलेबल वायरलेस माउस एज वेल, राइट, तो वो बिना वायर के होते हैं जिनके अंदर बैटरी पड़ती है। So there are different types of mouse. First is mechanical mouse and second is optical mouse. अब ये देखने में तो सेम से लग रहे हैं। So what is the basic difference? Let us talk. First है mechanical mouse. तो mechanical mouse हम पहले यूज करते थे, उसके नीचे क्या होता था आप पिक्चर में देख सकते हो। ये पहली पिक्चर जो है इसमें दिखाया है माउस का जो नीचे वाला पार्ट है उसका बेस, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अगर हम इस राउंड जहाँ पे सर्कल बना हुआ है रेड कलर में, अगर हम इसको ओपन करें तो ये बॉल निकलेगी बीच में, ठीक है, ये बॉल ही है, दिस इज द कंट्रोल पार्ट ऑफ दिस माउस। अगर हम इस जो भी हमारा, अगर हम माउस को मूव करते हैं तो अंदर से ये बॉल मूव करती है, तो जिस भी साइड को बॉल मूव करेगी उसी साइड पे स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर हमारा कर्सर मूव करेगा, राइट। तो इस माउस को हम और भी क्या बोलते हैं, बॉल माउस, इसको सभी ने याद रखना है। दिस माउस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉल माउस। ये थोड़े से हैवी होते हैं और इनको बार बार क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बॉल जो है वो साथ में डस्ट भी इंक्लूड कर लेती है अपने अंदर, तो इनको बार बार क्लीन करना पड़ता था। अभी जो आजकल हम बैटर यूज करते हैं दे आर ऑप्टिकल माउस। ये माउस का नीचे वाला पार्ट मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, दैट इज ये जो रेड कलर में है ये है हमारी एलईडी लाइट। तो लाइट सेंसर्स के थ्रू ही ये जो माउस हैं वो मूव करते हैं, दे यूज एलईडी लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। ये मैकेनिकल माउस से लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इनको कैरी करना, इनको पिक करना, इनको चलाना, मूव करना इजी होता है, और इनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको दोबारा से दिखा लेती हूँ, जैसे हमने मैकेनिकल माउस में बात की, इसमें बॉल है, राइट, लेकिन इस वाले माउस में इसमें कोई भी बॉल नहीं होती, इसमें लाइट सेंसर्स होते हैं, एलईडी लाइट के बेसिस पे ही, जिस लाइट के थ्रू ही, सेंसर्स के थ्रू ये माउस जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसके नीचे देखो बेटे, अगर इफ यू हैव बुक तो नीचे इन्फो बॉक्स में दिया हुआ है अबाउट टच स्क्रीन। सो दिस इज योर टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है, इट इज अ कंप्यूटर स्क्रीन विद टच सेंसिटिविटी स्क्रीन। तो हमारे जो, आपको पता ही है, हमारा जो फोन की स्क्रीन होती है दैट इज अ टच स्क्रीन, राइट। सो हमारे फोन की जो स्क्रीन है दैट इज टच स्क्रीन। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ मॉनिटर्स भी ऐसे अवेलेबल होते हैं, जैसे कई बार हम वी गो टू एटीएम मशीन, आप अपने मम्मा या पापा के साथ एटीएम मशीन पे गए होंगे, तो वो एटीएम के ऊपर ही, स्क्रीन के ऊपर ही टच करके हम अपने उसको यूज करते हैं एंड वी विड्रॉल द मनी। तो वो हमारी स्क्रीन कौन सी होती है, टच स्क्रीन होती है। इट लेट्स द यूजर वर्क ऑन द मॉनिटर विद द टच ऑफ देयर फिंगर्स। हम फिंगर्स के थ्रू टच करके ही उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स भी कुछ आते हैं जिनके अंदर हमारे पास टच स्क्रीन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन जो है वो लाइट का मतलब वो लाइट से चलता है, दैट इज उसके अंदर भी, जैसे हमने माउस की बात की उसके अंदर एलईडी लाइट है, ऐसे ही पेन के अंदर भी लाइट सेंसर्स होते हैं जिसके थ्रू वो काम करता है। सो इट इज अ डिजिटल पेन, इट इज यूज्ड टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, हम आगे पढ़ेंगे अबाउट मॉनिटर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं। जो हमारे पहले मॉनिटर्स चलते थे दे आर सीआरटी मॉनिटर्स, ये शायद हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, बट स्टिल वी विल डू इट इन दिस क्लास एज वेल। एंड जो हमारे आजकल हम मॉनिटर्स यूज करते हैं दे आर एलईडी मॉनिटर्स और एलसीडी मॉनिटर्स, राइट। तो ये जो लाइट पेन है इट ऑलवेज वर्क विद सीआरटी मॉनिटर, ये एलसीडी या एलईडी मॉनिटर के साथ काम नहीं करता। इफ यू वांट टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन द मॉनिटर विद यूजिंग अ लाइट पेन देन यू हैव टू यूज अ सीआरटी मॉनिटर। और इसको कौन यूज करता है, मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर और टीचर्स भी यूज करते हैं टीचिंग करने के लिए। कुछ
जगह पे स्मार्ट बोर्ड्स लगे होते हैं, वो बोर्ड पे लिखने के लिए टीचर्स पेन को यूज करते हैं, एंड दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पेन, दैट्स अ लाइट पेन। तो इसके नीचे आपको एक नोट दिया हुआ है कि माउस, टच स्क्रीन और लाइट पेन ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम सम पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो जिनको हम जो पॉइंट करती हैं चीजें, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हम मूव करने के लिए, काम करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि माउस हो गया, माउस के थ्रू हम मूव कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, टच स्क्रीन के थ्रू भी हम डायरेक्टली टच करके पॉइंट कर सकते हैं, लाइट पेन के थ्रू भी। तो ये सभी हमारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इज स्कैनर। तो जो भी इनपुट डिवाइस, अच्छा आप सबने देखी होगी फोटोकॉपी मशीन। तो फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है, अगर आप फोटो स्टेट को कुछ भी करवाने गए हो तो वो उसके अंदर पेज रखते हैं, ठीक है, वो मशीन उसको स्कैन करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसकी सेम सिमिलर कॉपी प्रिंट होके बाहर आ जाती है। बट इसमें क्या है, स्कैनर में ये भी सेम तरह से इसको स्कैन करता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन बस इसमें सिर्फ हार्ड कॉपी बाहर नहीं आएगी, जो भी हम डेटा इसको स्कैन कर रहे हैं वो उसको स्कैन करके किसको ट्रांसफर कर देगा, कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा सेव हो जाएगा। जैसे आपके पास एक पेज है, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, आप चाहते हो मैं इसको सेव कर लूं हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर रख लूं, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसकी फोटो क्लिक करके सेव कर लो, या फिर आप बेटर उसकी क्लैरिटी के लिए क्या करो, उसको स्कैन कर लो, स्कैन करके फिर आप उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर लो। हम टेक्स्ट जैसे आप जो भी लिख रहे हो उसको भी सेव कर सकते हैं, उसको भी स्कैन कर सकते हैं, और इमेजेस को, पिक्चर्स को, सभी को स्कैन करके रख सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो फर्स्ट वन इज फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड, देखो पिक्चर में आपको समझ आ रहा होगा, फ्लैट बेड की तरह ये लेटा हुआ है, तो हम इसके अंदर अपना जो भी पेज है, पिक्चर है, उसको यहाँ पे रखते हैं, और ऊपर से उसका लिड लगाते हैं, उसको स्कैन करता है और डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। सेकेंड है शीट फेड। शीट फेड देखो, ये ऊपर से हम शीट इसके अंदर डालते हैं और उसको स्कैन करके नीचे से शीट को बाहर निकाल देते हैं, चेंजेस शीट के अंदर कुछ नहीं आएगा, ये शीट एज इट इज सेव हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर। एंड थर्ड वन इज हैंड हेल्ड। तो अगर आप लोग कभी जाते होंगे, सभी आप लोग वहां पे जाते होंगे मम्मा पापा के साथ किसी मॉल में, या कुछ भी बाय करने मेट्रो में, इजी डे में, ठीक है, तो वहां पे जब आप बिलिंग कराते हो तो उस टाइम पे ऐसे एक उन्होंने डिवाइस पकड़ा होता है, तो वो उसको पकड़, उसको स्कैन करते हैं, और साथ ही में जो जो भी उसकी पेमेंट होती है, जो भी जितने भी अमाउंट की वो चीज होती है, वो उसके ऊपर आ जाती है, उनके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है किसका इतना अमाउंट है। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज अ हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है। हैंड हेल्ड मतलब हम इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, राइट। तो ये हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, हमारा बार कोड रीडर होता है। तो अगर आप अपनी बुक उठाओ, बुक की बिल्कुल बैक साइड पे देखो, वहां पे कुछ लाइंस बनी हुई है, उसके ऊपर नीचे नंबर्स लिखे होंगे, और लाइंस बनी होंगी, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई एक से ज्यादा लंबी है, ठीक है। So the pattern of different lines is called a barcode. इस बार कोड के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज, जैसे ये बुक के ऊपर बना है तो ये बुक की इंफॉर्मेशन होगी कि बुक का नाम क्या है, बुक का पब्लिशर कौन है, बुक का प्राइस क्या है, ऐसी चीजें, ठीक है, ये कब पब्लिश की गई थी। तो इन सभी इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है, दैट इज अ बार कोड रीडर। ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इसके थ्रू डेटा ले रहे हैं, ठीक है, डाटा बार कोड का इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ से किसके अंदर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो ये क्या करता है, बार कोड को रीड करेगा यूजिंग द बीम ऑफ लाइट। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है, मॉनिटर के अंदर। तो बार कोड का जो पैटर्न है वो क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस का है, लाइंस की जो थिकनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आई गेस दैट मच इज क्लियर। तो हमने अभी तक जो रीड किया है, पहले हम बाकी के डिवाइसेस भी एक बार कर लें, देन वी विल रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स। सो नेक्स्ट वन इज वेब कैम। तो अभी तो आपको पता चल गया, बहुत सारी आपने क्लासेस पिछले साल से आप लगा रहे हो, तो जो भी वेब कैमरा हम यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं वेब कैम। तो बेसिकली हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लाइव वीडियो चैट्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आपके फोन का जो मिरर कैमरा होता है, दैट इज ऑल्सो वर्क एज अ
वेब कैम, वो वेब कैम की तरह काम करता है क्योंकि उसके थ्रू हम जो है वो लाइव वीडियो चैट जो है, लाइव वीडियो कॉल जो है वो हम कर सकते हैं। हम वी कैन ऑल्सो यूज द बैक कैमरा दीज डेज बिकॉज वी कैन शिफ्ट द कैमराज। ठीक है, तो ये जो हमारा फोन का कैमरा होता है इट वर्क ड्यूल पर्पस, ये वेब कैम की तरह भी काम करता है और डिजिटल कैमरा की तरह भी। नेक्स्ट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा इज यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स, इसके थ्रू हम फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर सकते हैं। सो जो भी इमेजेस हैं वो स्टोर होती हैं डिजिटल कैमरा में, किसमें, मेमोरी कार्ड। इतना छोटा सा हमारे पास डिवाइस होता है, कार्ड होता है, जैसे मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा फोन के अंदर भी डलते हैं, ऐसे ही डिजिटल कैमरा के अंदर भी मेमोरी कार्ड डलता है। तो जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करते हो वो कहाँ पे सारी सेव होती हैं, मेमोरी कार्ड के ऊपर, राइट। So this was all about your input devices. तो अभी मैं 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। आई विल शेयर इट अगेन। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्कस करें। तो आप सभी को अपने चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हमने क्लासिफाई किया था हार्डवेयर को इनटू डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हार्डवेयर को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 पार्ट्स में। वेरी नाइस, 3 पार्ट्स में। नाउ कैन यू राइट कौन से 3 पार्ट थे? चलो कोई एक पार्ट बता दो, एनी वन पार्ट फ्रॉम दिस। इनपुट डिवाइस, गुड। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तो 3 पार्ट थे हमारे, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, डिवाइस के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ओके, तो अभी मुझे बताओ हाउ मेनी कीज वर देयर इन द कीबोर्ड? हमने कितनी कीज डिस्कस की? बेसिक कीबोर्ड की हम बात करें, जो हम जनरली जो यूज करते हैं उसकी, उसमें कितनी कीज थी? 104। अभी भी 101 लिखा है, किसने लिखा है 101? हु रोट 101? 140, ये तो मुझे लगता है गलती से लिख दिया है। 101 वेदिका, वेदिका 101 कीज होती हैं या 104 होती हैं? ओके, सो चलो मुझे नेम बताओ अब। कीबोर्ड की कितनी टाइप्स हो सकती है, पहले ये बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स कैन बी देयर? 2। अभी नेम बताओ उनके। कैन यू राइट द नेम्स? Types of keyboard, QWERTY and multimedia. Very nice, QWERTY and multimedia. ओके, चलो एक छोटी सी नेक्स्ट पेज पे ना आपकी एक एक्टिविटी है, पेज नंबर 10 पे। अगर आपके पास बुक है तो हम उसको करेंगे सॉल्व। पहले मैं आपको मुझे स्क्रीन शेयर करने दो एक बार। ओके, तो मैं रूपाली मैम, माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am, visible. ओके, थैंक यू। ओके, सो टेल मी, पहले आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, सो विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स? किस इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। नंबर 1 माउस, दैट इज माउस। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। joystick is also good in Preet. अभी I guess this is Abhineet. joystick is also good, पर अभी हमने joystick इसमें पढ़ा नहीं है, so for this being हम mouse को ही ले रहे हैं। ठीक है, you can also write joystick. Good, good. Okay, so second question, name the type of mouse that has a movable control ball. Control,
वो कौन से टाइप ऑफ माउस था जिसके अंदर बॉल थी? हमने अभी पिक्चर्स में भी देखा, हमने उसके बारे में पढ़ा भी। वो कौन सा माउस था? मैकेनिकल माउस। गुड। मैंने आपको ये भी बताया था हम उसका कुछ और भी कहते हैं। देयर इज वन अनदर नेम फॉर दैट माउस एज वेल। कैन यू टाइप दैट नेम? दैट वाज द नंबर 1, बॉल माउस। Very good. It means you are very serious. You are listening to me carefully. Very nice. And it shows that you were and you are excited for the computer class, right? Very good. Very good on your part. I'm excited as well. Okay. So next question is, which device is used to have live video chats? मैम लिखना है? अभी बताती हूँ बेटे, लिखना है या नहीं, पहले मुझे आप आंसर्स दो। भूवी ने लिखा है 3, बट मैंने तो थर्ड ऑप्शन दिया ही नहीं है बेटे, मैंने तो दो ही ऑप्शन दिए हैं। सो विच डिवाइस इज यूज टू हैव लाइव वीडियो चैट? वीडियो चैट के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? हम डिजिटल कैमरा यूज करते हैं या वेब कैमरा यूज करते हैं? गुड। मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग 2। बीच में से कुछ ने, एक स्टूडेंट ने 1 भी दिया है। 3 कौन दे रहा है? मैंने तो 3 ऑप्शंस दिए। देयर आर नॉट 3 ऑप्शंस बेटे, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, नंबर 1 and 2. You can type either, you can choose either option 1 or option 2. Manraj is saying 1. बेटे डिजिटल कैमरा is used to capture images. हम डिजिटल कैमरा से, जो बेसिकली जो कैमरा होता है, हम फोन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम डिजिटल कैमरा अगर सेपरेटली हो तो हम उससे वीडियो कॉल नहीं कर सकते। फॉर दैट वी रिक्वायर अ वेब कैम जो आपके ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर सके, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स कैन हार्डवेयर बी डिवाइडेड? हार्डवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? अभी मैंने पहले भी पूछा था ये आपसे क्वेश्चन। Into how many groups can hardware be divided? हम 2 parts में divide कर सकते हैं या 3 में? So answer is 3 parts. That is option 2. So you can either write option 2 or 3 parts. Very nice. Girisha is writing 1. Anhad is writing 1. मैंने ओके यानी 2 parts में, आप बोल रहे 2 parts में हम डिवाइड कर सकते हैं, पर बेटे मैंने आपको बताया था there are 3 parts. There are 3 parts: input, output and processing. These 3 types of hardware can be. Hardware devices जो है, जितने भी hardware parts हैं, कंप्यूटर के parts हैं, हम उनको 3 parts में divide कर सकते हैं. Input device है, चाहे वो output के लिए use हो रहा है, चाहे वो processing के लिए use हो रहा है, और जो भी device जिसको हम touch कर सकते हैं, देख सकते हैं और touch कर सकते हैं, they are called the hardware devices. तो अभी आप सभी को क्या करना है, ये जो है, मैं पीछे जाती हूँ, आपका पेज नंबर 10 के ऊपर है लेट्स रिवाइज आंसर इन 1 वर्ड। मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगी साथ में इसका भी मैं आपको आंसर्स भेज दूंगी, आपने अपनी बुक में लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन था विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स? तो आंसर है माउस। माउस इज द करेक्ट आंसर, माउस, राइट? माउस आपको बुक में लिखना है। इफ यू हैव योर बुक, पेन से नहीं बट आई वुड से यू वुड यूज पेंसिल, क्योंकि अगर कुछ भी इरेज करना है, कुछ भी चेंज करना है, देन इट विल बी इजी। वैसे तो हम चेंज नहीं करेंगे, बट एडिशन अगर कुछ भी हमें करनी है तो वो इजी हो जाएगा पेंसिल से। अगर आपको पेन यूज करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। अभी आपको नए नए पेन लगे हैं तो यू मस्ट बी एक्साइटेड टू यूज द पेन, तो आप पेन भी यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन राइट ईदर वे, पेंसिल भी और पेन भी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और एक बच्चे ने एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, देयर वाज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स दैट डू वी नीड अ सेपरेट नोटबुक? सो बेटे यू डोंट नीड अ सेपरेट नोटबुक बिकॉज देयर इज स्पेस प्रोवाइडेड इन योर बुक एज वेल एट द बैक एक्सरसाइज, देयर इज स्पेस, वहां पे स्पेस है, देन यू कैन राइट देयर। वो पेन से लिखना है आंसर, पेंसिल से लिखना है, दैट इज योर चॉइस। अभी मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी, दैट इज अप टू यू कि कैसे करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है माउस। सेकंड क्वेश्चन था नेम द टाइप ऑफ माउस दैट हैज अ मूवेबल कंट्रोल बॉल। तो कंट्रोल बॉल जिसके अंदर बॉल होती है उस माउस को हम क्या कहते हैं? बॉल माउस। आप मैकेनिकल माउस भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है? मैंने बॉल माउस लिखा है, आप मैकेनिकल भी लिख सकते हो, बट स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, राइट? नेक्स्ट वन इज
which device is used to have live video chats? So digital camera or web camera? So the answer was web camera, जिसको हम webcam भी बोलते हैं. एन्स इज आस्किंग मैम हमने सारे सब्जेक्ट पेन से करने हैं. बेटे यू मस्ट इंक्वायर फ्रॉम योर अदर सब्जेक्ट टीचर्स, राइट? अदरवाइज आई गेस यू कैन राइट, बट स्टिल आपको अपने मैम से एक बार कंफर्म कर लेना है कि हम यूज कर सकते हैं या नहीं. ठीक है. सो वेब कैम. वाई इज भूवी राइटिंग 3 अगेन एंड अगेन? भूवी, Saksham Gupta, Rupali ma'am, can you please unmute Saksham Gupta? And the last question is, into how many group can hardware be divided? Saksham, you can unmute it. Okay, I am going to stop my screen share. ये आप आंसर्स लिख लेना. We have discussed it. और मैं इसकी PDF भी भेज दूंगी. हाँ जी सक्षम बेटे. Rupali ma'am, can you please unmute Saksham? Unmuted, ma'am. Saksham, where is Saksham bete? You can ask the question now. You said you write in the chat box that you have a doubt. Now you can ask the question. Okay, let me first stop the recording. So this was all about our chapter 1 input devices. अभी तक हमने जो किया है that is about hardware, and hardware में we have discussed about input devices. So in the next class we will discuss the further things about the processing devices and output devices, right? Okay, thank you so much for attending this class. अभी मैं recording stop कर रही हूँ.